আপনি ভোট ব্যাংকের জন্য রাজ্যের ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিচ্ছেন। মঙ্গলবার 30শে ডিসেম্বর শাহী নিশানায় পড়লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন সল্টলেকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে শাহ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আপনি ভোট ব্যাংকের জন্য রাজ্যের ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিচ্ছেন। অমিত শাহ বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি কি জবাব দিতে পারবেন? ত্রিপুরা, গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সীমান্তে কেন অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে? শুধুমাত্র বাংলায় কেন অনুপ্রবেশ হয়? কারণ একটাই, আপনাদের মদতেই ভোট ব্যাংকের জন্য অনুপ্রবেশ করানো হয়, কিন্তু এটা বেশি দিন চলবে না। বাংলার মানুষ এটা বুঝতে শিখে গিয়েছে। আগামী নির্বাচন, তাতে অনুপ্রবেশ বন্ধের ইস্যুই সামনে থাকবে। শাহ বলেন, বাংলায় অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র বাংলার সমস্যা নয়, এখন সারা দেশের সুরক্ষার বিষয়। আর মমতা ব্যানার্জির সরকার এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করছে না। একমাত্র বাংলায় বিজেপির সরকার এলেই সীমান্ত সিল করে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারবে। কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर। कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে ফেন্সিং দরকার, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ফেন্সিং এর জন্য জমি দিচ্ছে না বলে এর আগেও বিজেপিকে অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে। মঙ্গলবার 30শে ডিসেম্বর রাজ্যের সাংবাদিক বৈঠক করার সময় জমি না দেওয়ার অভিযোগ করতে শোনা গেল অমিত শাহকেও। তবে শুধু তাই নয়, অমিত শাহ আরো বলছেন যে যতক্ষণ না ফেন্সিং হচ্ছে ততক্ষণ বিএসএফ নিরাপত্তা দিতে পারবে না। বিএসএফ কে ফেন্সিং এর জন্য জমি দিতে হবে। আমি মমতা ব্যানার্জিকে 7টা চিঠি লিখেছি, 6 বারের মধ্যে 3 বার স্বরাষ্ট্র সচিব এখানে এসে মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন। আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, জমি দিতে ভয় কোথায়? আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই নাকি আপনারা অনুপ্রবেশ হতে দিতে চান? সারা দেশ থেকে যে অনুপ্রবেশকারী পাকড়াও করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে বাংলার ভুয়ো নথি পাওয়া যাচ্ছে।
ভোট ব্যাংক মজবুত করার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য সরকারের নীতি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এই কারণেই আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস অনুপ্রবেশ আটকাতে পারবে না। বাংলার ডেমোগ্রাফি বিপজ্জনকভাবে বদলাচ্ছে আর আগত সময় খুবই চিন্তাজনক। কি বলছেন অমিত শাহ আরো শোনাবো। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। তৃণমূল কংগ্রেস অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে এই অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বিজেপির তরফ থেকে এই অভিযোগ এর আগেও বহুবার তোলা হয়েছে। সেই একই অভিযোগ শোনা গেল অমিত শাহের গলাতে। যেটা দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূলের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে বিএসএফ এর দায়িত্বে কে রয়েছেন? বিএসএফ, অমিত শাহের দপ্তর। তাহলে কেন অনুপ্রবেশ হচ্ছে? বিএসএফ কি করছে? আর এবার অমিত শাহ তিনি পরিষ্কার বলছেন যে বিএসএফ কে যে কাজ করতে দিতে হবে, তার জন্য ফেন্সিং করতে দিতে হবে, তার জন্য জমিটা দিতে হবে, কিন্তু সেই জমিটা রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। অনুপ্রবেশকারীদেরকে মদত দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ভোট ব্যাংককে ঠিক রাখতে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার এই ধরনের কাজ করছে, অনুপ্রবেশকে মদত দিচ্ছে, কটাক্ষ করছেন অমিত শাহ। কি বলছেন তিনি আরো একবার শোনাবো। वोट मिले थे, क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।